So in a nutshell, what it is that, so this is the format in Excel by which I can give you from Tally raw schema. That means this is the Tally raw schema here, and this is the Tally raw schema, and you come in here. And the added details which are going to be there is with respect to this collection and object and the voucher details, right? So for example, my bill is outstanding against multiple invoices. So all the voucher details and this thing will also come here. राइट, तो ये लिंक मैं कर रहा हूँ, ये आपको ओडीबीसी में नहीं मिलेगा. करेक्ट, दैट्स व्हाट is there. So this is the added thing which is there. So I will now just go over this quickly, the demo, because I have to actually, but my time is getting up. Right, wait a second, huh? So if I take this here, tally difference, right, and this is my API. This is my API extract, right? So Tally basically what happens is it has got three standard ways by which I can export the data. One is your XML, one is your ODBC. ODBC is yes, which I will tell you how the structure is, and one is the trigger keyway. Trigger keyway is that I basically record the set of keys which are going to be there, right? So for example, in Tally it is DS plus O plus R, and then for each ledger I keep on exporting the data, right? But the XML and the ODBC. So ODBC and XML, what is the differences? So ODBC here is basically means is, say for example, I have this schema here, right? This particular schema, these details will go into ODBC, right? And the XML output is simply going to be whatever is the Tally default report will go there. Is that clear? So because Tally is making it, तो वो default report जो है वो Tally की जो है वो चली जाती है. यहाँ तक clear है बेटा? Right. Schema से आ रही है. So ODBC basically would mean this schema would come in a standard export, right? But within the ODBC, if I want to get the voucher details entries from Tally, then that will not come. So the thing here is voucher detail मतलब कि मेरा कौन से voucher number जो था उसका outstanding है, right? So now basically ODBC is going to be a snapshot. So I don't know the exact. I think bill details का आपको करना है is a snapshot, and there won't be any details below the second level of hierarchy. मतलब इस तरीके से होता है. Suppose if I pick up this ODBC and if I pick up this voucher and if I pick up this all inventory entries, so batch allocation details will not come. Is that clear? Right. Or similarly in the ledger allocations, ledger details, this thing, the bill allocations will not come. Right. तो ये second level of hierarchy के नीचे ODBC में नहीं जाता है. And ODBC is a snapshot, so you cannot see the thing dynamically with respect to time. Right. So in Tally, what happens is when we do it, बेटा इसमें क्या होता है, स्नैपशॉट का मतलब क्या हुआ, एक गठजोड़ हो गया. जैसे कि ओडीबीसी का टेबल में क्या हुआ कि उसने कहा कि इस तारीख से इस तारीख तक मेरा इतना बिल आउटस्टैंडिंग है, ये तारीख से ये तारीख तक मेरा इतना बिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, या इस तारीख से इस तारीख तक मेरी इतनी सेल है. पर अब मुझे चाहिए भैया जनवरी 1 2001 को कितनी थी, 2 को कितनी थी, 3 को कितनी थी, 4 को कितनी थी. अगर मेरे को पर डे देखना है तो वो मुझे ये तिथि हर बारी चेंज करनी पड़ेगी ओडीबीसी के लिए. ये क्लियर है? क्योंकि तुम एप्लीकेशन बना रहे हो तो तुम अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हो, मुझे पता नहीं क्या है एग्जैक्टली पूरा, मुझे प्रोजेक्ट का नहीं पता क्योंकि इंडिविजुअल लिखा हुआ था, राइट? तो अभी क्या है कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि गठजोड़ में कि देखो हर तारीख का जो है वो निकल आके आ रहा है, तो वो ओडीबीसी में ये आ जाता है, राइट? अब बेटा क्या हुआ कि जब इसके आ गया तो फिर हमने क्या की, टैली से रिपोर्ट निकाली थ्रू एक्सएमएल. तो एक्सएमएल की जो है ना सारी की सारी रिपोर्ट्स का जो है जो भी बिल डिटेल्स का है, तो तुम इस साइट पे जाओगे, मारो site.google.com, राइट? और साइट में google.com पे जिस पेज से तुमने अपना डेमो बुक किया, ये तुम्हारा टैली एपीआई वाला पेज है, ठीक है ना? और टैली एपीआई वाला जो पेज है ना, वो उसमें जो है तुम्हें खूब सारी प्रेजेंटेशंस मिलेंगी, ठीक है ना? तो
हाँ, राइट राइट। तो प्रेजेंटेशन कैसे स्टडी करनी है, जैसे कि तुमने क्या किया, तो इसमें तुम्हें ये मिल जाएगा कि हमने अधिकतर जो टैली के जो कलेक्शंस हैं उनको जो है ला के रख दिया है। करेक्ट। हम्म। अब इसमें इशू क्या आएगा, ये रहा, ये कॉस्ट सेंटर एनालिसिस, टॉप आइटम बैच एनालिसिस, टॉप डाउन का ये रहा। अब इसको स्टडी कैसे करना है बेटा, जैसे तुमने बैलेंस शीट डॉट पीपीटीएक्स किया, तुम इस रिपोर्ट पे गए। अब ये एक्सएमएल की जो है ना आउटपुट ये रही है ना, तो तुमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कॉपी किया। राइट। और फिर टैली में क्या होता है, एक टैली प्राइम डेवलपर होता है। और तुम उस टैली प्राइम डेवलपर पे टूल्स पे जाओगे, टैली कनेक्टर पे जाओगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है ना, मैं 1 मिनट में टैली प्राइम इसमें खोल लेता हूँ। माफ करना, यहाँ पे गया, ये मैंने ऐसे किया, ये कंट्रोल वी किया। ठीक है ना, तो ये मेरा टैली प्राइम डेवलपर पे मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है ना, तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, टैली को मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि देखो मुझे एक्सपोर्ट करो डेटा। किसको? टाइप। और टाइप क्या होगी, कलेक्शन, ऑब्जेक्ट या रिपोर्ट। तो अगर रिपोर्ट है तो डेटा है, कलेक्शन हो गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एक ऑब्जेक्ट हो गया, और एक हो गया फंक्शन इन टैली, वो 4 का ऑप्शन होता है। और इधर जो है रिपोर्ट का नाम क्या होता है तुम्हारी, इसका रिपोर्ट का नाम है बैलेंस शीट। ये तो समझ आया, और इस कंपनी के लिए भेजो और गो करो। तो उसने क्या किया, तुम्हारी जो थी ये रिपोर्ट जो थी वो एक्सपोर्ट कर दी यहाँ से। तो ये जो था तुम्हारा एक्सएमएल का आउटपुट आ गया। ये तो समझ आया, एक सेकंड, जैसे इसने किया ना, ऐसे किया, तो ये तुम्हारा एक्सएमएल का आउटपुट आ गया। तो तुम्हें क्या करना होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा स्टडी करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है कि तुम इधर गए, DSOR, तो ये कौन सी रिपोर्ट है, बिल रिसीवेबल। ठीक है ना, तो तुमने क्या किया कि यहाँ पे गए और तुमने कहा बिल्स रिसीवेबल कौन कौन सी है, ये किया और तुमने गो किया। तो इसमें तुम्हें क्या पता लगा, ये टैली की बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट का आउटपुट आ गया। मतलब ये कि मेरी बिल पार्टी थी 101 इनोवेशंस, मेरा बिल रेफरेंस ये था, मेरा बिल डेट ये था, मेरा बिल का क्लोजिंग बैलेंस ये था, किस तारीख से ये था, कितने दिनों से ओवरड्यू है। तो इसका जो बिल फिक्स्ड और बिल वो है, इसको तुम निकाल करके तुम्हारी एक सेट ऑफ रिपोर्ट्स बन सकती है। एम आई करेक्ट और नॉट करेक्ट? ये क्या है, तो 101 इनोवेशन से ये एक्सएमएल से तुम्हारा निकल सकता है। राइट, तुम अगर एक्सएमएल में पूरा बनाना चाहते हो तो तुम एक्सएमएल से इधर से बना सकते हो, उसी तरीके से बिल पेएबल। राइट, तो ये बिल पेएबल का हो गया। ये मैंने कर दिया, ये बिल पेएबल का हो गया। अब इसमें क्या है कि ये मेरा बिल रेफरेंस तो आया है, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वाउचर नंबर है, क्योंकि वो जो डिटेल है, वो जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। वो इधर आ रहा है, ये देखो ना, बिल डिटेल, माफ करना, ये स्कीमा पे आ गया ना, तो ये बिल डिटेल्स पे वो यहाँ पे आ रहा है। ये देखा तुमने, ये है लेजर एंट्रीज है, तो ये वो डिटेल्स एक्सएमएल में नहीं दे रहा है। वो मैं तुम्हें बता दिया, मतलब तुम्हें मैंने ये बता दिया कि तुमने ये रिपोर्ट ली, इसका रिपोर्ट का नाम ले बिल्स रिसीवेबल, तुम उस बिल रिसीवेबल पर डाल देना, तुम्हें बैलेंस शीट की जगह बिल रिसीवेबल डालना है, और तुम्हारा जो है काम जो है वो इधर से हो जाएगा। है बेटा? ठीक है बेटा। अब तुम्हें क्या करना है कि ऑल्ट टैप करके, एक सेकेंड, ऑल्ट टैप, तुम इधर आए सपोज, अब मैं इधर आया, मतलब मैं तुम्हें फटाफट बता रहा हूँ। अब अगर तुम्हें मान लो रिपीट कॉलम्स करने हैं, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक का, इस तारीख से इस तारीख तक का प्रॉफिट कितना है, मुझे मालूम नहीं आपका केस क्या है, तो उधर इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो है ये वाली देख लेना, ये वाली। ठीक है ना,
और इस वाली में देख करके तुमने अगर इसको किया तो इसमें रिपीट सेट का एक सैंपल दिया हुआ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है ना, ऑल टैप किया। तुम इधर आए, तुमने टूल्स पे लिया, टैली कनेक्टर लिया और इधर लिया, इसको पेस्ट किया। तो ये क्या हुआ, ये रिपीट सेट आ गया। तो ये कंपनी नहीं है, तो इसमें ये आता है, ये कंपनी का नेम आ गया। ये एक्सपोर्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सैंपल वन मेरी कंपनी है। तो तुम्हें हर बारी तुम्हारे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे, एसवी फ्रॉम डेट, एसवी टू डेट एंड एसवी करंट कंपनी। तो ये जो थी तुम्हारी, जो थी ये रिपीट वेरिएबल्स के साथ आ गई। मतलब मेरी इस तारीख से इस तारीख तक का इतना प्रॉफिट था, मतलब पहला सेट ऑफ कॉलम्स। फिर इस तारीख तक इतना था, इस तारीख से इस तारीख तक इतना, इस तारीख तक, तो ऐसे बढ़ता चला गया। समझ आया बेटा? ठीक है। तो अब मैं इधर आया। फिर मैं इधर आया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा सेकंड सेट का है। अब इसमें बेटा क्या आता है कि तुम्हें जब तुम इधर इसको देखते हो, सी कॉलन टाइनी डिफरेंसेस में इधर आए, जब तुमने इधर देखा इसका, ठीक है ना, टॉप डाउन वाले में, तो यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, बिल्ड रिसीवेबल कंपैरिजन। एक मिनट में ये देख रहा हूँ कि तुम्हें बिल्ड रिसीवेबल कंपैरिजन से तुम्हारा काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसमें होगा तो कैश फ्लो कंपैरिजन, ये बिल रिसीवेबल एक्सट्रैक्ट, ये वाली जो है तुम्हें प्रेजेंटेशन यूजफुल रहेगी, क्योंकि अगर तुम्हें एक्सएमएल से एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो शायद ये पूरा का पूरा बिल रिसीवेबल एक्सट्रैक्ट इधर है। ये तुम समझ रहे हो बेटा? ये कलेक्शंस है, ये इसका पाइथन का कोड है, ये कलेक्शन का है। तो ये एक्सपोर्ट किया, रिमोट बिल्स कौन कौन से हैं, ये समझ आ रहा है बेटा? तो आई थिंक ये तुम्हारा जो है, ये पूरा का पूरा शायद तुम इधर से पाइथन के कोड से तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा। इज दैट फाइन? देखिए अभी मुझे भी पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि तुम कैसे करना चाह रहे हो। फिर ये अगर जेसन से एक्सएमएल से आ गया तो तुम वहां पे उठा सकते हो। नहीं तो जेसन पे, हाँ बोलो। नहीं बेटा, वो जो है तुम्हें मुझे गूगल शीट का एपीआई स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा ना, कि भाई तुम्हारा क्या है वो। चैट जीपीटी में मिल रहा है इतना बेसिक सवाल, जिस चैट जीपीटी इज गिविंग यू दैट आंसर ना। चैट जीपीटी दे तो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? और वो तुम इन्वेस्टिगेट करो। नहीं बेटा, गो इस, यार कहाँ फंस रहे हो तुम? तुम्हारी अगर गूगल शीट है ना, वो एक एपीआई से लेगी ना डेटा को, वो तो एपीआई स्ट्रक्चर देगी ना, कि भाई मेरे को कैसे रिसीव करना है। वो स्ट्रक्चर तो तुम मुझे दोगे ना, वो मुझे पूरा पता नहीं है इसका, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। बिफोर दिस मीटिंग आई टोल्ड यू दैट। नहीं, एपीआई जो है, हाँ एक्सएमएल जेसन वाला इसलिए आ रहा था क्योंकि वो सिंगल कंपनी का ही आ रहा था। मल्टीपल हिट्स होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच होती है, स्लो स्पीड ऑफ रिपोर्ट होती है अगर डेवो का होता है, और ट्रायल बैलेंस पूरा नहीं एक्सट्रैक्ट होता, ऑल टेफन का के अलावा और कुछ नहीं होता, टॉप डाउन अप्रोच होती। तो इसलिए हम लोगों ने एपीआई जेसन का बनाया था, ताकि हम सारी की सारी जो है वो शॉर्टकट कीज को, जो है ऑल्ट F3, ऑल्ट F2, ऑल्ट F12, F4, F8, F5, सिंगल हिट ऑन टैली और जेसन एपीआई फ्रेंडली हो। तो इसीलिए हमने जेसन का बनाया था।
तो अभी मैंने बेटा तुमको ये बता दिया, तुम क्या गूगल शीट से तुम्हें वो पता नहीं लगेगा, तुम चैट जीपीटी से ही नहीं बता सकते कि एपीआई का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा ना। नहीं आ रहा है समझ में? अरे यार, पाइथन से हो जाएगा, नहीं तो एक्सएमएल पाइथन से हो जाएगा। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम बहुत ठंडे दिमाग से सोचो, अगर मैं एक्सेल में दे दूं, एक्सेल से सिंक करके तुम वहां से आप शीट बना लो, क्योंकि गूगल शीट वाला अभी, क्योंकि तुम्हें एपीआई स्ट्रक्चर भी पूरा क्लियर नहीं है, तो तुम्हारे लिए एक लंबा खेल हो जाएगा। कि ये मैंने की नहीं है, क्योंकि अब ये गेट पोस्ट वगैरह सब पता होना चाहिए ना कि कैसे है। तो तुम बहुत ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दूं,